Hello students, myself Renu. Today we are going to start chapter number 2. In my previous lectures we already discussed about land, soil and water. Now in this chapter we discuss about natural vegetations and wildlife. My dear students, all over the world natural vegetations is controlled by physical environment. Natural vegetation is simply defined as the plant that grow naturally in an area. The growth of natural vegetations depend upon what is this? Climate and relief features of an area. Natural vegetations and wildlife are the greatest natural resources of earth. For example, plants give us wood that can be used as a timber or firewood. There are several other uses of plant as well. They produce oxygen which is important for living. They are helpful in protecting soil from leaching. They provide natural habitat for animals. They help in storage of underground water. We get large variety of commercial products from the trees such as timber, rubber and resin, etc. My dear student, basically the growth of vegetations depend primarily on temperatures and moisture. If both the factors are available, that our natural vegetations grow better. Different types of plant and animals living together under common environmental conditions make up a biome. My dear student, मैं आपको बता दूं जो हमारे जितने भी आपके एनिमल्स प्लांट्स जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सभी मिलकर क्या बना रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में इट मेक अ बायोम. A biome comprises all the economies within a given geographical area. Biomes are found on land, terrestrial as well as in water. My dear students, the major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, scrubs and tundra. In area of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with area having abundant water supply. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें जो हमारी जो वेजिटेशंस टाइप जो अवेलेबल है उसको डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड या कैटेगराइज्ड किया गया है. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस. शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. My dear student, thorny shrubs and scrubs grow in a dry area of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with the waxy surface reduce losses of moisture through transpirations. Tundra vegetations of cold polar regions comprises of mosses and lichens. My dear student, मैं आपको बता दूँ जितनी भी हमारी जो वेजिटेशंस अवेलेबल है वो डिफरेंट जो थिंग्स हैं उन पर डिपेंड करती है. बेसिकली ये आपके टेम्परेचर और मॉइस्चर से ही रिलेटेड है. हम इसको यहीं पर को रिलेट करते हैं आपके टेम्परेचर और मॉइस्चर से, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर हॉट है वहाँ पर आपके जो थॉर्नी शर्ब्स स्कर्ब्स वगैरह जो है वो बेसिकली जो हमें आपके सराउंडिंग में देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर भी कम होगा. My dear student, there are different types of forests present in the world. यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस. माय डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर द टू मेन फैक्टर प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ vegetations. The major type of vegetations available in world are grouped as a forest. उसको अलग अलग कैटेगरी में हम कैटेगराइज्ड करते हैं, चाहे ग्रास लैंड है चाहे स्क्रब्स है. सम इम्पोर्टेंट टाइप्स वी हेयर डिस्कस द फॉरेस्ट. फर्स्ट इज अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट.
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, जहाँ पर भरपूर मात्रा में जो है रेनफॉल होता है, दे आर क्लोज टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के नियर अबाउट पाए जाते हैं। यहाँ पर जो बेसिकली जो रेनफॉल आपका होता है ये आपका 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच का होता है। और यहाँ पर जो आपका अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ह्यूमिड टेम्परेचर पाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो होती है वो प्लांट और ट्रीज़ की होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर हम बेसिकली जो एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वैसे द वेदर, यहाँ का जो वेदर है वो रिमेन hot and wet all over the year, hence a thick and dense tree cover is formed. This cover does not to allow sunshine to reach the ground. The examples are hardwood trees like cinchona, rubber, ebony, rosewoods, mahogany are commonly found in this area. Amazon basins of South America is the main area where these forests are found. They are also found in Malaysia, in Southeast Asia, part of Philippines and Java basins in Africa. In the Amazon basins, these forests are termed as सिल्वास। माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इन फॉरेस्ट को हम सिल्वास के नाम से जानते हैं वर्ल्ड में। नाउ आई वांट टू शो द पिक्चर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। बिल्कुल डेंस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सनशाइन भी इवन ग्राउंड तक नहीं जाती। यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो इतने डेंस हैं और साल भर वो हरे रहते हैं, बिकॉज ये अपनी जो लीव्स है उसको इकट्ठे शेड नहीं करते। आवर नेक्स्ट टाइप्स हेयर ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। Tropical areas are the main regions where these forests are found. These areas consist of monsoonal type of climate with seasonal dry and wet spells. My dear student, अगर हम बात करें तो जो मानसून फॉरेस्ट है वो मानसून पर डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर जब मानसून आती है तो ये हरे भरे रहते हैं। These forests are mainly located in India, Indian subcontinent, Eastern Africa, Sri Lanka, Northern Eastern Australia and Southeastern USA. These forests are easily accessible as the trees here grow apart. ये हमें हमारी पहुंच में आसानी से है। The trees here are of commercial value. जहाँ जो भी ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं उनकी काफ़ी अच्छी कमर्शियल वैल्यू होती है। द मेन वैरायटीज जो यहाँ पर है वो है सैंडलवुड है, साल है, बैम्बो है, टीक है, एक्सेट्रा। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, जहाँ पर आपको दिख रहा है जो ग्रीनरी तो है लेकिन वो सीजनल होती है। जब मॉनसून आएगा तो ये ग्रीन हो जाएंगे। आफ्टर दैट आवर थर्ड टाइप हेयर temperate evergreen forest. Temperate evergreen forests are found in the warm temperature region of southeastern Brazil. में ये बेसिकली पाए जाते हैं साउथर्न जापान, साउथर्न चाइना, अ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट यूएसए एंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. Trees like walnut, pines, oak, mulberry are found here. My dear student, this is the picture of temperate एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये आपको इस तरह के दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं जो ट्रीज़ हैं उनका ट्रंक काफ़ी अच्छा है और उनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। बेसिकली जो यहाँ पर ट्री पाए जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर डेवलप ड्यू टू हॉट ड्राई समर्स की वजह से इनकी डेवलपमेंट होती है एंड वार्म वेट विंटर्स क्रिएटेड बाय द मेडिटेरेनियन सी. These forests are not dense, ज़्यादा घने नहीं होते. The trees are of medium height and are evergreen. These forests are located in Italy, Spain, southern France, Turkey, central Chile and California in the USA and southern western Australia. The important trees जो यहाँ पर आपको basically मिलते हैं सेदार, pine, oak, etc. My dear student, this is the picture of Mediterranean forest.
आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक है। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ग्रासेस भी है यहाँ पर और आपके जो ट्रीज़ भी हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल डेंस नहीं है। दैट मीन्स स्कैटर्ड, फैले हुए हैं, बिखरे हुए की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। आफ्टर दैट आवर फिफ्थ टाइप इज़ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। These forests are mainly located in cool temperate regions में ये basically मिलते हैं। They are found in Central and Western Europe, Canada, Northwest USA, Northern Japan and Northern China. The trees are not very tall. लंबे ट्री आपको देखने को नहीं मिलेंगे। They have broad leaves. Leaves broad होंगी and thick trunk. They survive even below 0 degrees Celsius of temperature and shed their leaves in autumns. The main varieties of trees found here are ash, maple, Douglas fir and poplar. This is the picture of these type of forest. You see the picture. And our next type of forest, tropical grassland. My dear student, basically the 5 types of forest we found, we already studied about. After that we discussed the another vegetations. This is the tropical grasslands. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल जोन में ये बेसिकली मिलते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द रेन फॉरेस्ट के साइड में. दिस रीजन्स कंप्राइजेस शर्ब्स, ग्रासेस, स्मॉल ट्रीज. दीज ग्रासलैंड्स आर टर्म्ड एज सवाना. These are found in South America, Brazilian highlands and Sudan, etc. My dear student, this is the picture of tropical grassland. See the picture. यहाँ पर आपको बेसिकली ग्रासेस देखने को मिलेंगी. आपके देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी जो है स्पेसिफिक ट्री यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता. आफ्टर दैट वी डिस्कस अनदर टाइप, टेम्परेट ग्रासलैंड्स. Temperate grasslands, they are located in the interior of continent. My dear student, जहाँ हमने बात की थी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं हमारे वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स की. टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी सेम ऐसे ही होते हैं, बट जो डिफरेंस होता है कि ये जो है इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में हमें मिलते हैं. मेजर ग्रासलैंड्स आर स्टेपीज ऑफ यूरेशिया, ये आपने रीड भी किए हैं. स्टेपीज ऑफ यूरेशिया, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका एंड पैम्पाज इन साउथ अमेरिका. माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी डिस्कस हियर द tundra vegetation. It is found in high latitude. That means ज़्यादा हाइट पर इस तरह की वेजिटेशंस देखने को मिलती है. द एरिया इज कवर्ड विद हैवी स्नो ड्यू टू विच प्लांट डू नॉट ग्रो. यहाँ पर ज़्यादातर जो है आपकी स्नो ही रहती है. अगर मैं डिस्कस करूँ द एग्जैक्ट लोकेशंस इन द नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल जो इसकी आपकी होती है, द वेजिटेशंस फाउंड हेयर आर लिचेंस, उसके बाद मोसेस, some short shrubs like willow trees and junipers etc. यहाँ पर जो है बेसिकली समर सीजन में देखने को मिलते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ तुंद्रा वेजिटेशंस, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादातर जो है स्नो आपका जो स्नो है उससे ये एरिया कवर रहता है. इस तरह यहाँ पर स्पेसिफिक किसी तरह की जो आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी. आफ्टर दैट डेजर्ट्स वेजिटेशन. You know about deserts. We have 2 types of deserts, basically hot and cold deserts. Deserts, if I discuss basically जो deserts होते हैं generally they are hot and dry. They receive very less rainfall. Rainfall तो बिल्कुल नील या लेस के बराबर होगा, due to which they have negligible vegetation cover. जहाँ जिसके लिए जिस कारण से यहाँ पर जो वेजिटेशंस कवर है वो बिल्कुल ना के बराबर है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डेजर्ट वेजिटेशंस. आप देख रहे होंगे बेसिकली यहाँ पर आपको कैक्टस जो है, कैक्टी का जो प्लांट है वो देखने को मिलता है. माय डियर स्टूडेंट, वी डिस्कस आवर नेचुरल वेजिटेशंस एंड कंजर्व आवर natural vegetations. How we conserve our natural vegetations, there are some steps or some ways of conserving forest are as follow. मैं आपके सामने जो है बेसिकली शो कर रही हूँ जो डिफरेंट स्टेप्स हमें कंजर्विंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस के लिए उठाने चाहिए. फर्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्स.
जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। एफॉरेस्टेशन दैट मीन्स फिर से प्लांट को लगाना है। प्रोटेक्शंस ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जो है फॉरेस्ट फायर से इसको बचाना है। इंक्रीजिंग सोशल फॉरेस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल फॉरेस्ट्री को इंक्रीज करो। डिस्करेजिंग द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशंस। माय डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट हियर वाइल्ड लाइफ. Wildlife is simply defined as a various species of animals that live together in a natural surrounding. It play a very important role in our ecosystem. My dear student, मैं बता दूँ आज हमारे जो एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म होने की कगार पर है, और ये सभी मिलकर इकट्ठे हमारे इकोसिस्टम को फ्रेम करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ द नीड टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. Conservation of wildlife resources. In this picture I show you only the those species which are endangered, that means जो ख़त्म हो रही हैं या ख़त्म होने की कगार पर है. After that I discuss here conservation of wildlife. Many species have become endangered and some are on the verge of extinction. मैंने CITES के बारे में आपको बताया था. द फुल फॉर्म इज कन्वेक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा. ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट. इट स्टेट्स दैट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन शुड गो हैंड इन हैंड एज द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इज लार्जली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट. माय डियर स्टूडेंट, जो CITES है एक्चुअली में ये एक एग्रीमेंट है जो किस लिए किया गया है, स्टेट्स या कंट्रीज़ के बीच में, ताकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व किया जा सके, हमारी नेचुरल वेजिटेशंस को प्रिजर्व किया जा सके. मे बी यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नाउ. थैंक यू स्टूडेंट्स.